Hello everyone. Today we'll continue our topic, that is set theory. In the last video, we studied about the last topic was equivalent set, equal sets, types of set. Now today we'll do subset of a set, very important topic of set theory. A set A is said to be the subset of B. Any set A will be the subset of a set B if each and every element of A is there in the set B. That means all the elements of A will be there in the set B like this. A and B. Suppose we are having A. In A we are having 1, 2, 3. And in B we are having 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6, 7 सपोज करो. तो 1, 2, 3 A में आ चुका है तो वो B के अंदर पहले से ही है. 6 और 7 हमने यहाँ लिख दिया सपोज करो. That means B में क्या क्या एलिमेंट है? 1, 2, 3, 6, 7. और A में क्या है? 1, 2, 3. So the notation is A is the subset of B. What is the notation? Notation is A is the subset of B. A is the subset of B like this. This is the notation. Now A subset mathematically हम कैसे करते हैं? This is the pure language form. Mathematically we write A is the subset of B if I am taking any particular element of A. कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा A का, मतलब A के सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाया जनरल, दिस इज जनरल एलिमेंट. If that will lie in B, then I will say that A is subset of B. यहाँ पे चेक कर लो. सेट A के अगर हम बोल रहे हैं B का, सेट A का 1 लिया, वो B के अंदर है. सेट A का 2 लिया, this is also in B, and set A का 3 लिया, this is also in B. So we can say that A is the subset of B. If A belonging to A implies A belongs to B, then we can say that A is the subset of B. Now, if A is a subset of B, then we say that A is a subset of B. This is the notation. If this type of notation is there, then we will say that this A is a subset of the set B, and this B is the superset of A. This A is the subset of B, and this B is the superset of A. A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है. इक्वल हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. Examples. I am taking example, बिल्कुल जनरल एग्जांपल लिया है. Suppose I am having a set 1, 2 having 2 elements. This is a set having 3 elements, but all the elements are there in this set. So we can say that this set is the subset of this set. यहाँ पर आए 1, 2, all the elements in this set. So 1, 2 is a subset of 1, 2. 1, 2 is a subset of 1. अब यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला. क्या रिजल्ट मिला? अब मैं अगर यहाँ 3 कर दूंगा तो यहाँ 3 भी आ सकता है. दैट मीन्स मुझे रिजल्ट मिला दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मैंने यहाँ पर लिखा भी है नोट में दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपने आप का सबसेट होता है. एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. A is the subset of A is always true. Now suppose this is the singleton set 3. This is a subset of 3, 4, 5. Why? Because this element is there in this set. This is superset, this is subset. This is superset, this is subset. This is superset, this is subset. Subset of this, superset of this. Subset of this, superset of this. यहाँ पर दोनों सेट इक्वल भी है. Because every set is the subset of itself. अब यहाँ पर ये बहुत लंबी टर्म ली है मैंने अच्छे से समझाने के लिए. नंबर के फॉर्म को देखो. N is a natural number. W is whole number. यहाँ पर W लिख दिया क्योंकि W is not standard notation. N is standard natural number. Z is standard integers. Q is standard rational number. R is standard real number. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था. तो natural number is the subset of whole number. All these are infinite sets. All these are ये सारे एग्जांपल किसके थे? Finite set के. All these are the examples of infinite set. A natural number, subset of whole number, subset of integer, subset of rational number, subset of real number. चेक कर लो. n में क्या था? 1, 2, 3. होल में 0 और आ गया. इंटीजर्स में नेगेटिव वाले 1, 2, 3 भी आ जाएंगे. -1, -2, -3. रैशनल में तुम्हें पता ही है रैशनल में कितने नंबर p/q फॉर्म के सारे नंबर आएंगे. और रियल नंबर अपने आप में सबसे बड़ा है. सो यहाँ पर एक चेन बनाई है सबसेट्स की. n सबसेट्स ऑफ w, w सबसेट ऑफ z, z सबसेट ऑफ q, q सबसेट ऑफ r, r सुपरसेट ऑफ q, q सुपरसेट ऑफ z, z सुपरसेट ऑफ w, w सुपरसेट ऑफ n. Note, first note I have already explained that every set is the subset of itself. ये रहा एग्जांपल आपके सामने. Now, empty set is the subset of every set.
एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। एक सेट में जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, एक सेट में जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो वो तो अपने आप में सबका सबसेट होगा ही होगा। एम्प्टी सेट खुद का सबसेट, उसका सबसेट फाई हो जाएगा। हमने लिखा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो फाई का सबसेट क्या होगा, फाई होगा, तो सबसेट तो हो गया ना। दैट मींस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज द एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ इफ, अब यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, फिलहाल फॉर्मूला लिख लो क्या है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m, that means cardinality of a set A is m, then number of subsets of that set, number of subsets, इसको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी, फिलहाल फॉर्मूला देखो। if number of element in set A is m, then number of subsets of set A is 2 to the power m, this is the formula। 1 मार्क क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादातर आते हैं, और अब तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन हो गए इन 11th एंड 12th, सो बहुत ज्यादा चांस है 1 मार्क से क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे, तो इस टाइप के फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। If NA equals to m, then number of subsets of A is 2 to the power m. This was about subset of a set. इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, दैट इज, आई एम रबिंग दिस, वो टर्म है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। अब दूसरी टर्म यहां पर प्रॉपर सबसेट आ गया, हमने किया सबसेट, हमने सबसेट तो कर लिया, सबसेट ऑफ ए सेट, नोटेशन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if A is a subset of B but A not equal to B। A B का सबसेट तो हो, लेकिन A B के इक्वल नहीं हो, A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। A B का सबसेट तो होगा, लेकिन A B के इक्वल नहीं होगा। अब प्रॉपर सबसेट की नोटेशन क्या होती है, वो होती है सिंपली A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसमें से इक्वल हट गया। सबसेट में ए बी के इक्वल हो सकता है, ए कैन बी इक्वल टू बी, ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट ए बी से छोटा ही होगा। दैट मींस यहां पर मेन बात यह है दैट कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी। But and all the elements of A, all the elements of A will be there in B। A के सारे एलिमेंट B में तो होंगे अगर A B को कंटेन कर रहा है तो, बट कार्डिनैलिटी उसकी B से कम होगी, A B के इक्वल नहीं होगा। दिस इज द डेफिनेशन। ये सबसेट तो होगा, लेकिन साथ में ये भी होगा, इसको तुम बट कहो चाहे एंड भी कह सकते हो, एंड मतलब दोनों का कॉमन, तो A फिलहाल बट कह रहे, मान लो A सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट का मतलब। इसको और डिटेल में समझाना तो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। इससे पहले मैं रब करता हूं कि ये प्रॉपर सबसेट का साइन है और ये सबसेट का साइन है। ये दिस इज द सबसेट का साइन, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट एंड दिस इज प्रॉपर सबसेट। आई विल टेक एग्जांपल टू एक्सप्लेन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। एग्जांपल और क्लियर होगा। I am taking set A equal to 1, 2. I am writing subsets of A. I am writing subsets of A. जब भी किसी सेट के सबसेट्स लिखने हैं तो सबसे पहले सबसेट होता है उसका फाई। Empty set is the subset of every set. Then I will write after phi, I will write singleton 1. After that I will write singleton 2. After that I will write singleton 1, 2 because every set is the subset of itself and I am writing subsets, not proper subsets. I am writing subsets. तो that set and empty set वो तो उसके सबसेट्स में आएगा ही आएगा। Now I am writing proper subsets. Now I am writing proper subsets. वो क्या होंगे? phi, singleton 1, singleton 2, that's it. 1, 2 इसमें नहीं आएगा because 1, 2 अपने आप में सेट है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो सबसेट बनेगा वो उसके इक्वल नहीं होगा।
दैट मीन्स इसके 4 सबसेट्स हैं बट प्रॉपर सबसेट्स 3 है। सेट को चेंज किया, मैंने सेट सपोज करो मैंने उसको बी ले लिया, कर लिया 1 2 3। सबसे पहले सबसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स दैट इज 5 कॉमा सिंगलटन 1 कॉमा सिंगलटन 2 कॉमा सिंगलटन 3 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 all the subsets. These are all the subsets of this set. Now I am writing proper. तो proper subsets में सारे आ जाएंगे but the set itself वो नहीं आएगा। proper subsets क्या आएंगे? सबसे पहले 5, then singleton 1, then singleton 2, then singleton 3, then 1 2, then 2 3, then 1 3. That's it. 1 2 3 4 5 6 7. ये सबसेट प्रॉपर सबसेट सबसेट प्रॉपर सबसेट। दैट मीन्स प्रॉपर सबसेट क्या हो गया? प्रॉपर सब केस में ए बी का सबसेट तो होगा बट ए विल नॉट बी इक्वल टू बी। तो ये मिलके क्या बन जाएगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसको यहां पर रहने देते हैं। अच्छा, अब पहले फॉर्मूला वो वाला जो समझाया था, फॉर्मूला क्या था अभी बताया था। इफ number of element in a set A is m, if number of element in a set A is m, then number of subsets of A, नोट में लिखवाया था, is equal to 2 to the power m। अभी लिखवाया था नोट में, ड्रॉप कर दिया मैंने। आगे देखो, elements are 2 1 2 3 4, 4 subsets are there। Elements are 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 to the power 3। अगर 4 होगा 16 बनेंगे। I will find all the possible subsets। So this is the formula 2 to the power n। Also one more formula which can come in exam, that is number of proper subsets। Number of proper subsets of the set A is given by 2 to the power m minus 1। सिर्फ एक सबसेट हट जाएगा। यहाँ पर 4 थे 3 हो गए, यहाँ पर 8 थे 7 हो गए, 16 वाले में 15 हो जाएंगे। सिर्फ एक अपने आप में जो सेट है वो सेट हट जाएगा। रेस्ट ऑल द सेट्स विल बी हैविंग कार्डिनैलिटी लेस देन दैट ऑफ दैट सेट। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर 2 to the power m minus 1। number of subsets of A is 2 to the power m। now I am coming, मैंने अभी इसको रब नहीं किया, इसका यूज है इसलिए बता रहा हूं, अभी मैंने इसको रब नहीं किया है। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज पावर सेट ऑफ अ सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। लेट ए बी अ सेट, ए बी अ सेट, देन पी ए इज द नोटेशन फॉर पावर सेट ऑफ सेट। P ब्रैकेट में A, अगर सेट B है तो B ब्रैकेट में B, C है तो P ब्रैकेट में C। पावर सेट ऑफ दैट सेट, जो सेट हम लिख रहे हैं। देन PA इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट। इफ A इज a set, then PA क्या है? PA is the power set of that set, is the collection of all the subsets, not proper subsets, all the subsets of that set। मैंने यहां पर इसको इसे रब नहीं किया, क्यों? बिकॉज इस सेट A के मैंने लिखे सारे के सारे सबसेट्स। अगर मैं आपसे बोल दूं ये सेट A है, एग्जांपल सीधा यहीं पे एग्जांपल ही हो गया। इफ दिस सेट इज A, देन PA इज इक्वल टू, बस इसका कलेक्शन बना दो, ये बन गया कलेक्शन। अगर ये A है तो ये P है, सारे के सारे सबसेट लिखे, उसका सेट बना दिया, मेकिंग ऑल द सबसेट्स एज अ सेट। इस सेट के सबसेट्स आ रहे हैं, ऑल द सबसेट्स। दिस इज पावर सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट। सपोज दिस इज सेट B, ये सबसेट्स हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? PB इज इक्वल टू, यहां सेट बना के ये सेट,
और यही है पावर, ये पावर सेट ऑफ ए में नहीं बेटा, पावर सेट ऑफ ए में ऑल द सबसेट्स आते हैं, नॉट प्रॉपर सबसेट्स। पावर सेट ऑफ ए ये बन गया, पावर सेट ऑफ बी ये बन गया, कंप्लीट। दिस इज पावर सेट ऑफ ए, दिस इज पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट के बारे में डिटेल बता दी। तो अब यहां पर एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया वही 2 to the power n से। कैसे बन गया? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 to the power m। Why? Because पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? जितने इसके सबसेट्स होंगे। और ए के सबसेट्स कितने होंगे? फॉर्मूला भी पढ़ा है 2 to the power m। So if any cardinality of a set is m, then the cardinality of its power set will be 2 to the power m। तो सबसेट ऑफ ए सेट किया, प्रॉपर सबसेट किया, देन पावर सेट किया, प्रॉपर सबसेट सबसेट में डिफरेंस समझा, पावर सेट किया, एग्जांपल लिखा। अब इसमें हम कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है उसकी। यूनिवर्सल सेट जो है वो वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि अपने आप में द बिगेस्ट सेट। अब बिगेस्ट सेट क्या है वो हम इसको स्पेसिफाई तो कर नहीं सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, इट विल वेरी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जस्ट लाइक समझो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हमने, प्रोबेबिलिटी में जस्ट लाइक मानो सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी की थी, प्रोबेबिलिटी में क्या था? सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस अगर मान लो मैंने डाई फेंक दी तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 आएंगे। बट उससे अब मैं प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो किसकी पूछूंगा? इवन आने की, ओड आने की, तो वो सारा आउटकम उसके अंदर से ही आएंगे। तो वही बात यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अपने आप में सबसे बड़ा सेट, दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कह देता हूँ दैट यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू इज गिवन बाय 1 2 3 4 5। अब उस क्वेश्चन में अगर मैं कोई और सेट दूंगा, ए या बी या सी, कोई भी सेट दूंगा, वो इससे छोटा ही दूंगा, या खुद यूनिवर्सल सेट दे सकता हूं, बट रेस्ट ऑफ द सेट्स विल बी, cardinality of rest of the sets will be less than that of universal set। cardinality as well as the elements, cardinality नहीं as well as the elements, element मतलब सबसेट्स होंगे उसके, all other sets will be the subset of that universal set। तो मैथमेटिकली हम अभी करेंगे, आगे करवाऊंगा, वेन डायग्राम बोलते हैं उसको। अगर मैंने ये होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दिया, दिस इज शोइंग द यूनिवर्सल सेट। अब सारे के सारे सेट्स इसके अंदर आएंगे, ऑल द सेट्स। ये सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ नहीं है, कुछ मान लो डी है, उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अब मैं अगर सेट्स की बात करूंगा तो सारे के सारे सेट्स उसके अंदर ही होंगे, मतलब सारे के सारे सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। यूनिवर्सल सेट विल बी कंटेनिंग ऑल द अदर सेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे रियल नंबर था हमारे पास, सबसे बड़ा था वो, हमने अभी एक चेन बनाई थी यहाँ पर। सबसे पहले क्या था? नेचुरल नंबर, फिर क्या था? होल नंबर, फिर क्या था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, देन रियल नंबर्स। अब यहाँ पर इसके हिसाब से रियल नंबर क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। अब लेकिन रियल नंबर से बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मैं इसको इन जनरल यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकता, क्वेश्चन के हिसाब से बोल सकता हूँ। अगर मैं रियल की बात करूँ, ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है अपने आप में सबसे बड़ा सेट होगा उस क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। सो दिस वाज अबाउट यूनिवर्सल सेट। नाउ द क्वेश्चंस, अच्छा एक चीज बताएंगे, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ सेट ए इज इक्वल टू 5, अगर कोई सेट ए है 5, सेट ए है 5, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? सेट ए 5 का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज 0। अगर सेट ए 5 है, देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट in the power set of A, sorry, number of element in the set A is 0, then power set of A will be, number of element in the power set of A will be 2 to the power 0, that is 1। अब ये 1 है क्या? अगर सेट 5 है तो P ये क्या बनेगा? P ये बनेगा एक सेट जिसमें एक एलिमेंट 5 है। अब ये जो पावर सेट है ये नल सेट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नल सेट है, लेकिन ये जो पावर सेट ऑफ A है अब ये नल सेट नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कभी भी 5 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाते, ये सही है यहां पर। क्यों? क्योंकि अब ये नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज द सेट हैविंग वन एलिमेंट, दिस इज द सेट हैविंग वन एलिमेंट।
तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये ठीक है। दिस इज नल सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज वाइड सेट, बट दिस इज नॉट। तो नाउ the Venn diagram and all we'll do in the next video. Thank you.